and they told me that one of the shoes were worn by Shahrukh sir in Pathan. I was like, बाकी सब हटा दो. I only want to wear those shoes, and I shot only in those shoes. I'm not kidding. I can't tell you how many people have texted me and said कि Azhar Akhtar was looking so menacing. तो वो एग्जैक्ट मेनेसिंग वर्ड यूज किया लोगों ने. एंड मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ. अजहर अख्तर पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी जनरल्स को भी कह रहे हैं तुम्हारे देश के तुम्हारे लोगों ने ये किया था. Hi Rishabh, welcome to Indian Express जनसत्ता. Firstly, congratulations for the success of Fighter. जिस तरीके से लोग इतना पसंद कर रहे, इतना प्यार मिला, स्टार्ट करते शाहरुख खान सर से, so क्या कुछ कहना, how was it? वो तो that was like the best feeling. I mean, all of it has been really overwhelming, but to get complimented by Shah Rukh Khan, who's the ultimate, superstar of the country, especially for people who are not from the industry. मतलब I read that and I just sat down. मैं जहाँ खड़ा था मैं वहाँ बैठ गया, and because it was so unbelievable, you know. And fun fact, when I was shooting this film, the styling team gave me shoes options, and they told me that one of the shoes were worn by Shahrukh sir in Pathan. I was like, बाकी सब हटा दो. I only want to wear those shoes, and I shot only in those shoes. I'm not kidding. That was, and I went like before the first day of my shoot, I went to Mannat, ऐसे मंदिर जैसे मत्था टेक के I came back from there. So that was like a big deal for me. Right. एंड उसके अलावा डेफिनेटली हर कोई पसंद कर रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर पूछूं मैं अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खान, और किसका ऐसा कॉम्प्लीमेंट था, फ्रेंड का, फैमिली का, समवन ने यार जो बहुत हिट किया एंड यू नो डीप डाउन लाइक यू फेल्ट वेरी दिस थिंग इमोशनल और समथिंग? तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दो कॉम्प्लीमेंट थे जो कि मतलब मेरे को नहीं पता उसमें से एक तो मैं डिजर्व भी करता हूँ कि नहीं. लॉट ऑफ पीपल टेक्सटेड मी कि आई गिव देम, मतलब मैंने उनको, आई रिमाइंडेड देम ऑफ अमरीश पुरी सर. And for a villain to be complimented like that, I was at a loss of words. And the second thing was, while, even when the casting was going on, when I auditioned for the first time, and the casting team at Mukesh Chhabra, they told me the one single word में अगर इस character का brief है, so that's menacing. This character should look menacing. And I can't tell you how many people have texted me and said कि Azhar Akhtar was looking so menacing. तो वो एग्जैक्ट मेनेसिंग वर्ड यूज किया लोगों ने, एंड दैट रियली मेड मी फील लाइक जॉब वेल डन. जो टारगेट था वो अचीव हुआ है. शूट की अगर बात करूँ तो हाउ वाज इट नेगेटिव प्ले करना एंड दैट टू ऑपोजिट ऋतिक रोशन? कैसा एक्सपीरियंस रहा? व्हाट यू हैव टू से? देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर सो लकी टू गेट अ ब्रेक ऑपोजिट ऋतिक रोशन. He's been doing action films for the longest time and he's phenomenal. मतलब you can't say that effortless. He's an effortless actor. तो उनके opposite cast होना and then to do action opposite him, it was literally like a dream come true. मतलब he was the first guy जब कहो ना प्यारे आई थी. I believe he was the first actor in India to have a modern day physique like we see people having now. And that was, I think, 2004. And it's been 20 years now, and he's still maintaining that physique. And मतलब I have only praises for him, and मतलब मैं सिर्फ उनसे सीख ही सकता हूँ. He's that good. Right. And बात करूँ दीपिका पादुकोण, मैम उनके साथ मैंने शूट ही नहीं किया. Like we didn't have any shoot days together, so I've yet to experience working with her. But I met her on the day of the premiere, and we met for the first time, and she was very sweet. She herself, we both shook hands and she said finally we get to meet, and I also said the same thing. And obviously with Hrithik sir and Deepika ma'am also, I was starstruck when I saw them. So yeah, it was all in all amazing. I mean, there is no downside or nothing bad that I experienced on this project, right? एंड बात करूँ कहीं ना कहीं नेगेटिव को लेके, तो डेफिनेटली जिस तरीके से हमने पिक्चर में देखा है, आपका शेड हो गया या फिर जितना भी पोर्ट्रे किया है डार्क साइड या फिर पाकिस्तानी को स्पेशली, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मूवी को रियल समझते हैं. तो उनको ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर रियल है. तो आपको भी कुछ ऐसे डीएम्स आए हैं और समथिंग यू वुड लाइक टू शेयर जहाँ पे पीपल लिटरली ऐसे बोल रहे हैं आप देशद्रोही गद्दार टाइप्स? तो बट मैम अगर फिल्म जिन्होंने भी ध्यान से देखी है, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ. अजहर अख्तर पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी जनरल्स को भी कह रहे हैं तुम्हारे देश के तुम्हारे लोगों ने ये किया था. ही इज अ मर्सनरी, ही इज अ हायर्ड गन. तो एंड ऑफ कोर्स मेरे को था दिमाग में यार इसके लिए हेट मैसेजेस आ सकते हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस पीपल हैव लव्ड द परफॉर्मेंस सो मच कि मुझे हेट मैसेजेस एक भी नहीं आए. और मैं झूठ नहीं बोल रहा.
मुझे एक भी हेट मैसेज नहीं आया. इनफैक्ट पाकिस्तान से लोगों ने मैसेज करके इंस्टाग्राम पे बोला है दैट वेरी नाइसली डन, वेरी गुड एक्टिंग. So I was very amazed at that. And what is the takeaway you are taking from Takeaway बोले तो मैम I've learnt a lot in this film. I worked with like such huge stars, or I worked with Hrithik sir. I had the chance to meet Anil sir on set. I met Deepika, सिद्धार्थ सर के साथ मैंने काम किया. तो कहीं ना कहीं मैंने ये रियलाइज किया है, द बिगर द स्टार द ईजियर इट इज टू वर्क विद देम, बिकॉज वो लोग सेट पे एटमॉस्फेयर इतना कंफर्टेबल बना देते हैं कि बीइंग माय फर्स्ट फिल्म मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी पहली फिल्म है. मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऐसे स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ, बिकॉज एंड इट इज अ हाई लेवल ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देम, बिकॉज उन लोगों ने इतना ईजी और इतना कंफर्टेबल मेरे लिए बना दिया था एटमॉस्फेयर. राइट. अब बात करूँ आपकी फर्स्ट डेब्यू की, नॉट मूवी, एम्परर की, तो किस तरीके से वहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर अब तक अब लाइक इफ यू लुक बैक एंड सी योर जर्नी, तो कितना लाइक चीज़ें आपको दिखती है कि एज अ योर ग्राफ और एज अ करियर वाइज कितना चेंजेस यू फील? बहुत चेंजेस है मैम. मैं बहुत फ्रेश था उस टाइम पे. मैंने एम्पायर साइन किया था 2019 में, एंड मैं 2018 में बॉम्बे आया था. एंड वो शूट स्टार्ट होते होते लॉकडाउन की वजह से 2020 के बाद ही शूट, 2020 अगस्त में आई थिंक शूट स्टार्ट हुआ था. एंड तब मैं बहुत फ्रेश था. एंड तब मेरा कैरेक्टर भी जो था वो मतलब इट वॉज अ 2 एपिसोड कैरेक्टर, मतलब 2 एपिसोड्स के लिए फुल स्टोरी थी मेरे कैरेक्टर की. बट कंपेयरिंग टू अ नेगेटिव लीड इन अ फिल्म, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मेरी एक्टिंग बहुत इंप्रूव हुई है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू गेट अ कैरेक्टर एंड बैग अ फिल्म लाइक दिस. प्रोसेस वही था. एम्पायर के लिए भी मैंने ऑडिशन दिए थे, इसके लिए भी मैंने ऑडिशन दिए हैं. बस इस टाइम तक आते आते आई थिंक मेरे ऑडिशंस बेटर हो गए थे. एंड बात करूँ कैरेक्टर की, तो प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या आपने रेफरेंसेस देखे थे, क्या रिसर्च वर्क यू हैव डन एंड हाउ यू? तो I read a couple of books on the beginning of terrorism in Southeast in Middle East countries. वो एक book मैंने पढ़ी थी. Then I hired an acting coach, रचित सिंह करके, and he designed a whole program for me to get into the character. Where ऐसा 3-4 बारी हुआ then that I was not speaking for 4-5 days. मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, ना फोन पे ना लोगों से बात करते हुए. एंड फॉर लाइक द लास्ट 2-3 months I was only and only watching war documentaries of the stuff that has happened in Gaza or in Syria or in Palestine, which is happening right now. So I was watching all of that, and then I was writing down everything that I'm feeling. And after like a month of doing this, I could see that my thoughts have become very aggressive and like my mindset has become very negative, because I was seeing so much of bloodshed and so much of hate, and that too of real people. There was a lot of hatred filled inside me for humanity itself. And I think that was very important for Azhar, because Azhar did not like anyone. उसको नहीं फर्क पड़ रहा था वो इंडिया बर्बाद कर रहे हैं या कोई दूसरी कंट्री बर्बाद कर रहा है. उसके लिए the world needs to end. Like how they said it in Batman, that some people just want to see the world burn. तो वैसा हो गया था. कोई वो नहीं है. मेरे को किसी से प्यार नहीं था, बस मेरे को नफरत ही थी उस टाइम पे. कैरेक्टर से बाहर निकलने को कितना वक्त लगा? वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मैम. फिल्म खत्म हुई, मैं छुट्टी पे चले गया एंड मैं कैरेक्टर से बाहर आ गया. अपने स्कूल के दोस्तों से मिला, पेरेंट्स से मिला एंड सॉर्ट. मेरी फैमिली तो नेक्स्ट लेवल रिएक्शन. तो मैं प्रॉपर एक पंजाबी फैमिली से हूँ, ठीक है. हमारे यहाँ पे ना सब चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं. जब स्कूल में था तब बच्चों के 90 पे आते थे, डांट पड़ती थी. मेरे को 60 पे भी तारीफें, पार्टियां हो रही होती थी. तो मेरे पेरेंट्स का ऐसा था कि तुम जो भी कर रहे हो ना, खुश रहो. और हमने भी, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग दोनों ने ऐसे रेसिप्रोकेट भी किया है कि हम लोग ऐसे फालतू चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करते थे. मैं जब से बॉम्बे भी शिफ्ट हुआ था बहुत फोकस्ड और ये सब था. तो जब फिल्म मिली, इससे बड़ी चीज़ आज तक मेरी लाइफ में हुई नहीं है. क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं कुछ करने बाहर निकला हूँ एंड आई हैव अचीव्ड अ गोल. एटलीस्ट मैंने पहला स्टेप रख दिया उसमें. तो मेरे पेरेंट्स, अगर मैं यहाँ खुश था, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे खुश थे और वो एक्स्ट्रा ही सेलिब्रेट करते हैं. एंड फिर उसके बाद जब वो प्रीमियर पे आए और वो सबसे मिले और उनको जो रिस्पेक्ट, जो प्यार सबने दिया टीम ने, फाइटर की, जो उस टाइम पे उनकी खुशी थी ना, मतलब वो हर खुशी से बड़ी थी मेरे लिए. मतलब उससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी चीज़ से नहीं हुई. राइट. एंड अगर मूवी में से कोई भी, अगर मैं आपको पूछूं रिमेम्बरेबल कोई सीन पर्टिकुलरली जो हम थोड़ा टफ रहा था या इमोशनल था, या जो जैसा भी आपके लिए था, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, तो वो कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सीन था जहाँ पे यू फील वेरी कनेक्टेड और समथिंग?
जो वो वाला सीन था मैम, पूरा एक्शन सीक्वेंस अगर मैं बोलूँ तो, बिकॉज जब मैं वो गन्स लेके बाहर आ रहा था, तो हमने उसके 2-3 टेक किया। वो हम लोग एकदम समर्स में शूट कर रहे थे, बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, और मैं काफ़ी हेल्दी इंसान हूँ, मैं काफ़ी टचवुड में एक्सरसाइज वगैरह फुल रखता हूँ, डाइट वगैरह रखता हूँ, तो मेरे को कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि हीट स्ट्रोक आया हो या वीकनेस हुई हो या मैं बेहोश हो गया हूँ। मैं वो टेक के बाद बाहर आया और मैं बेहोश हो गया, मुझे हीट स्ट्रोक हो गया था और डिहाइड्रेशन साथ में हो गई थी। और फिर उसके बाद मैं वैनिटी में गया, मैंने रेस्ट किया, फिर मैं शाम को उठ के वापस आया, सिद्धार्थ सर ने पूछा ठीक है तो आगे शूट कर सकते हैं, तो फिर हमने आगे शूट किया। बट वो इंसिडेंट की वजह से मैं कभी नहीं भूलूंगा वो, मतलब एक्शन शूट करते टाइम मुझे जो मजा आया ना, अनपैरेलल्ड। मतलब वो हम देखते हैं और वो एक्चुअली में करने मिल रहा है, तो उससे ज्यादा खुशी थी नहीं। मतलब मैं तो अंदर से तो मैं पागल हो रहा था वो करने के लिए। ऑलराइट, एंड वेल, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो जो फैंस है, जो प्यार कर रहे हैं, जिन्होंने देखी मूवी, और उनके लिए भी जिन्होंने अब तक नहीं देखी, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? जिन लोगों ने फिल्म देखी है और अपना प्यार मुझे दिया है, थैंक यू सो मच। इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है किसी एक्टर के लिए भी, कि ऑडियंस को उसका काम पसंद आ रहा है। एंड जैसा काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि मेरी एक्टिंग देख के मुझसे नफरत हो रही थी स्क्रीन पे, सो थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क। एंड जिन्होंने नहीं देखी है फिल्म, प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म, स्पेशली इन 3D, बिकॉज फिल्म बहुत अच्छी बनी है। मेरा कैरेक्टर आपको पसंद आए या ना आए वो आपका डिसीजन है, बट मैं पर्सनली बोलूँगा फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है।